Hello, listening friends. नमस्कार श्रोता मित्रों। It is a joy and delight for us to know that you are listening to this program. हम ये जानकर बहुत आनंदित हैं कि आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। If you are joining us for the first time today, यदि आज आप पहली बार हमारे साथ सम्मिलित हो रहे हैं, we have been looking at the 7 signs or miracles from the Gospel of John. तो हम यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक में 7 चमत्कारों या चिन्हों पर गौर कर रहे हैं। Today we are going to examine the 5th sign. आज हम 5वें चिन्ह का अध्ययन करेंगे। I frequently travel around the world. मैं अक्सर दुनिया भर की यात्रा करता हूँ। I speak to leaders from different countries. मैं अलग अलग देशों के अगुओं से बात करता हूँ। One of the things that challenge me the most when I meet some of these leaders इनमें से कुछ अगुओं के साथ मिलकर जो एक बात मुझे चुनौती के रूप में मेरे सामने आती है, when I see some of them go through some rough storms in life. जब मैं उनको जीवनों के कुछ कठिन तूफानों से गुजरते देखता हूँ, Some of them pay with their life. तो इनमें से कई इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकाते हैं। The question I often ask myself is this: जो प्रश्न अक्सर मैं अपने आप से पूछता हूँ वो ये है, Can I stand these storms of life that these valiant Christians are facing? क्या मैं जीवन की इन आंधियों का सामना कर सकता हूँ जिनका ये साहसी मसीही सामना कर रहे हैं? These storms seem to be mercilessly tossing Christians about. ऐसा लगता है जैसे ये आंधियां मसीहियों को निर्दयता से इधर उधर उछाल रही हों। How many of us would be willing to pay the price of alienation? हम में से कितने पराधीनता की कीमत चुकाने को तैयार होंगे? How many of us would be willing to pay the price of discrimination? हम में से कितने भेदभाव की कीमत अदा करने को तैयार रहते हैं? How many of us would be willing to face the possibility of losing life itself? हम में से कितने अपनी जान जाने की संभावना का सामना करने को तैयार रहते हैं? As I reflect upon today's message, आज के संदेश पर विचार करते हुए I could not help but be challenged afresh by those solid men and women who are paying a heavy price for their faith. मैं फिर से उन दृढ़ पुरुष और स्त्रियों के बारे में सोचकर चुनौती पाता हूं जो अपने विश्वास की बड़ी कीमत चुका रहे हैं। I could hardly compare the storms in my life with the storms in their life. मैं शायद ही अपने जीवन की आंधियों की तुलना उनके जीवन की आंधियों से कर सकूं। Someone once said that the storms of life are God's way to prove us and improve us. एक बार किसी ने कहा कि जीवन की आंधियां परमेश्वर का तरीका है हमें परखने और हमारी उन्नति करने का। In fact, I am convinced that a life of ease leads to the danger of malaise. बल्कि मेरा मानना है कि आरामदायक जीवन व्याकुलता का कारण बनता है। The great Roman Empire at one time dominated particularly all of the civilized world. एक समय महान रोमन साम्राज्य का पूरे सभ्य जगत पर राज था। That empire fell when the vast majority of people became oblivious to the rampant immorality which led them to care only for food and sports. उस महान साम्राज्य का अंत हुआ जब बड़ी संख्या में लोग बेलगाम अनैतिकता में लिप्त हो गए और इससे उनके दिल दिमाग में मात्र भोजन और खेल ही रहता था। It is through the storms of life that God teaches us endurance. जीवन की आंधियों के द्वारा ही परमेश्वर हमें सहनशीलता सिखाता है। It is through the storms of life that God matures us. जीवन की आंधियों के द्वारा ही परमेश्वर हमें परिपक्व बनाता है। It is through the battering storms that God toughens us. जीवन की कड़ी आंधियों के द्वारा ही परमेश्वर हमें मजबूत करता है। It is through the storms of life that God prepares us to rule with Him in heaven. जीवन की आंधियों के द्वारा ही परमेश्वर हमें स्वर्ग में उसके साथ राज्य करने के लिए तैयार करता है। Now keep this in mind as we come to this 5th in the series of 7 signs of Jesus. अब यीशु के 7 चिन्हों की इस संदेश श्रृंखला में 5वें चिन्ह पर आते हुए इस बात को दिमाग में रखिए। According to John, we find the disciples in the middle of one of these storms of life. यूहन्ना के अनुसार हम शिष्यों को जीवन की इन्हीं आंधियों में से एक में फंसा हुआ पाते हैं। The Sea of Galilee is known for its sudden storms. गलील की झील को इसमें अचानक उठने वाली आंधियों के बारे में जाना जाता है। The lake is 6 miles wide, ये झील 6 मील चौड़ी है, 12 to 14 miles long, 12 से 14 मील लंबी, and it is 600 feet below sea level. और ये समुद्र तल से 600 फुट नीचे है। It is like a bowl-shaped depression surrounded by precipitous hills. ये सीधे पहाड़ों से घिरी हुई गोलाकार झील है।
Often when the sun sets in the early evening, अक्सर जब शाम को जल्दी ही सूर्य डूबता है, winds rise over the Mediterranean and blow cold air inland. तो मेडिटेरेनियन से तेज हवाएं उठकर हवा में शीत पैदा करती हैं। When the cold air reaches the Sea of Galilee, जब ठंडी हवाएं गलील की झील पर पहुंचती हैं, the cold air merges with the warm air rising from the lake water तो ये ठंडी हवा झील में से उठती हुई गर्म हवा में मिल जाती है and churns the lake into a foaming rage. और झील का मंथन कर इसको प्रबल झाग में तब्दील कर देती है। The waves can sometimes get as high as 6 feet. लहरें कई बार 6 फीट तक ऊंची उठती हैं। Twice in the Gospels we read that Jesus stilled such a storm. सुसमाचारों में हम 2 बार पढ़ते हैं कि यीशु ने ऐसी आंधियों को शांत किया। The first time Jesus was asleep in the boat. पहली बार यीशु नाव में सो रहा था। We find this story in 3 Gospels. हम इस कहानी को 3 सुसमाचारों में पाते हैं। In Matthew 8:23, मत्ती 8 अध्याय 23 पद में, in Mark 4:35, मरकुस 4 अध्याय 35 पद में and in Luke 8:22. और लूका 8 अध्याय 22 पद में। Listen to the version in Matthew 8:23 to 27. मत्ती 8 अध्याय के 23 से 27 के अनुवाद को सुनिए। जब वो नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वो सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और वे अचंभा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। John does not record this particular sign, यूहन्ना इस विशेष चिन्ह का जिक्र नहीं करता, but he records another one which Matthew and Mark also record. परंतु वो एक दूसरे चिन्ह का जिक्र करता है जो मत्ती और मरकुस में भी दर्ज है। Please turn with me to John chapter 6, verses 15 to 24. कृपया मेरे साथ खोलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 15 से 24 पद। यीशु यह कहकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। जब संध्या हुई तो उसके चेले झील के किनारे गए और नाव पर चढ़कर झील के पार कफरनाहूम को जाने लगे। उस समय अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था। आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगीं। जब वे खेते खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और डर गए। परंतु उसने उनसे कहा, मैं हूं, डरो मत। अतः वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वे जा रहे थे। दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पार खड़ी थी यह देखा कि यहां एक को छोड़ और कोई नाव न थी, और यीशु अपने चेलों के साथ उस नाव पर नहीं चढ़ा था, परंतु केवल उसके चेले ही गए थे। तब अन्य नावें तिब्रियास से उस जगह के निकट आई जहां उन्होंने प्रभु के धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई थी। इसलिए जब भीड़ ने देखा कि यहां न यीशु है और न उसके चेले, तो वे भी नाव पर चढ़कर यीशु को ढूंढते हुए कफरनाहूम पहुंचे। Let me summarize this. मैं इसे सारांशित करता हूं। One evening, the disciples had ridden their boat a short distance out on the Sea of Galilee. एक शाम गलील की झील में शिष्य नाव में कुछ ही आगे बढ़े थे, And there they were caught in one of those famous storms. और वो वहां ऐसे ही जाने पहचाने तूफान में फंस गए। As the waters grew, जैसे जैसे पानी का स्तर बढ़ा the tempest-tossed vessel became like a cork. तो नाव एक छाल के समान हिचकोले खाने लगी। This is not unlike what happens in life. ये उससे भिन्न नहीं है जो जीवन में होता है। We know what it is like when the calm of life gives way to confusion. हम जानते हैं कैसा लगता है जब जीवन की स्थिरता का स्थान उलझन ले लेती है। We know what it is like when serenity gives way to storm. हम जानते हैं कैसा लगता है जब शांति की जगह तूफान ले लेता है। We know what it is like when life's smooth course is replaced by the unexpected wind and waves. हम जानते हैं कि कैसा लगता है जब जीवन की आसान यात्रा की जगह अचानक आंधी और लहरें आ जाती हैं। We know what it is like when daylight surrenders to darkness. हम जानते हैं कैसा लगता है जब दिन का उजाला अंधेरे के सामने आत्मसमर्पण करता है। These storms of life normally have 3 causes. जीवन की इन आंधियों के आमतौर पर 3 कारण हैं। Cause number 1, नंबर 1 कारण Satan.
शैतान, He is the author and perfecter of evil. वो बुराई का निर्माता और इसे सिद्ध बनाने वाला है। He tries to pour his fury upon those who love the Lord. वो अपना क्रोध परमेश्वर से प्रेम करने वालों पर उंडेलने का प्रयत्न करता है। And the more you love the Lord, the harder he works and the louder he shouts. और जितना अधिक आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वो उतना ही ज्यादा कार्य करता है और चिल्लाता है। In Job chapter 1, अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय में Satan blew the great wind from the wilderness upon the house of Job and devastated him. शैतान ने मरुस्थल में से बड़ी आंधी लाकर अय्यूब को और उसके घर को बर्बाद किया। The more Job clung to the Lord, the madder Satan got. जितना अय्यूब परमेश्वर के साथ लिपटा रहा, उतना ही शैतान पागल होता गया। The second type of storm is the storm that is caused by stubbornness and hatred of other people toward us. दूसरी तरह का तूफान वो तूफान है जो दूसरे लोगों की हमारे प्रति जिद और नफरत की वजह से पैदा होता है। In Genesis 37, उत्पत्ति की पुस्तक 37 अध्याय में Joseph's brothers were so jealous and hateful toward him, they sold him into slavery. यूसुफ के भाइयों ने उसके साथ इतनी जलन और नफरत रखी कि उन्होंने उसे गुलामी में बेच दिया। In Acts 27, Paul told the commander of the ship not to sail in the Mediterranean. प्रेरितों के काम की पुस्तक 27 अध्याय में पौलुस ने जहाज के कप्तान से कहा कि वो भूमध्य सागर में होकर ना जाए। But the captain stubbornly refused and ended up in a shipwreck. परंतु कप्तान ने जिद करते हुए इनकार कर दिया और अंत में जहाज डूब गया। The third type of storm we experience is the result of our own foolishness and disobedience. तीसरी तरह का तूफान जो हम अनुभव करते हैं, वो हमारी अपनी मूर्खता और अनाज्ञाकारिता का परिणाम है। In Jonah chapter 2, योना की पुस्तक 2 अध्याय में Jonah was asked by God to go east, परमेश्वर ने योना से कहा कि वो पूर्व की ओर जाए, but he decided to go west instead. परंतु उसने इसके बजाय पश्चिम की ओर जाने का फैसला किया। So he ended up deep down under the water in the belly of the whale. इसलिए अंत में वो गहरे पानी में एक मछली के पेट में पहुंच गया। A respected journal has reported the following. एक सम्मानित पत्रिका में छपा था, It is no secret that a great deal of illness in the world is a result of personal behavior. ये कोई रहस्य नहीं है कि संसार में बड़ी मात्रा में रोग व्यक्तिगत व्यवहार का परिणाम है। A respected medical association has established that more than half of all diseases are behavior related. एक सम्मानित चिकित्सा परिषद ने यह साबित किया है कि आधे से ज्यादा बीमारियां व्यवहार से जुड़ी हुई है। Each year millions of work days are lost because of addiction and irresponsibility. हर साल काम के लाखों दिन किसी लत और गैर जिम्मेदारी की वजह से बर्बाद होते हैं। 30 million work days and 2 billion in wages are lost due to illness caused by high blood pressure. काम के 30 मिलियन दिन और 2 बिलियन मजदूरी बीमारी की वजह से बर्बाद होते हैं, जिसका कारण है उच्च रक्तचाप। And high blood pressure often comes from stress and anxiety. और उच्च रक्तचाप का कारण अक्सर तनाव और चिंता है। In Luke 15, when the prodigal son turned his back on his father, लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय में जब उड़ाऊ पुत्र ने अपने पिता से मुंह फेरा, he ended up in a pigsty. तो वो सुअरों के बाड़े में पहुंच गया। But in this passage in John, परंतु यूहन्ना के इस हिस्से में we find that this storm is not of the disciples' making. हम पाते हैं कि ये तूफान शिष्यों के किसी व्यवहार का परिणाम नहीं था। They found themselves in a storm because of the explicit order of their master. उन्होंने खुद को इस तूफान में अपने स्वामी के स्पष्ट आदेश की वजह से पाया था। Right after Jesus miraculously fed the 5,000, यीशु के द्वारा चमत्कारिक रूप से 5,000 लोगों को भोजन कराने के तुरंत बाद the multitude wanted to make him king by force. भीड़ उसे जबरदस्ती राजा बनाना चाहती थी। Jesus knew that his popularity was because they wanted him to give them more food. यीशु जानता था कि उसकी लोकप्रियता का कारण यह है कि वो चाहते थे कि वो उन्हें और भोजन दे। He knew that they were not acting out of spiritual conviction. उसे पता था कि वो ऐसा आत्मिक प्रेरणा से नहीं कर रहे थे। So Jesus went off to the mountain. तो यीशु वहां से निकलकर पहाड़ पर चला गया। Matthew records that Jesus told them to meet him on the other side. मत्ती बताता है कि यीशु ने शिष्यों को दूसरी तरफ उससे मिलने के लिए कहा।
So the disciples were waiting for Jesus to come back from the mountain. तो शिष्य यीशु के पहाड़ से लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। When he was delayed, they decided to go back to Capernaum. जब उसे आने में देर हो गई तो उन्होंने वापस कफरनाहूम जाने का फैसला किया। On their way back, about halfway, वापस जाते हुए आधे रास्ते में the Sea of Galilee began to experience one of these storms that made even these veteran seamen scared. गलील की झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा जिसने इन अनुभवी मनुष्य तक को भयभीत कर दिया। My radio friends, please listen very carefully. मेरे रेडियो मित्रों, कृपया बहुत ध्यानपूर्वक सुने। God never promised us a smooth sailing over the sea of life. परमेश्वर ने कभी भी हमसे जीवन के सागर में आसान यात्रा का वादा नहीं किया। On our journey to heaven, we were never promised that we would never have any problems. स्वर्ग की ओर हमारी यात्रा में हमसे कभी ये प्रतिज्ञा नहीं की गई कि हमें कभी कोई समस्या नहीं आएगी। On our way to glory, we were never promised a perpetual picnic with the sun always shining. महिमा की ओर हमारी यात्रा में हमसे कभी भी निरंतर मजेदार सैर सपाटे का वादा नहीं किया गया जहां सूर्य हमेशा चमकता है। Storms come unplanned and unexpected. आंधियां अनियोजित और अचानक आती हैं। Storms rise unsought and unwelcome. आंधियां अनचाहे और अस्वागत ही आती हैं। Storms rage uninvited and unaccepted. आंधियां अनामंत्रित और अस्वीकार्य उठते हैं। As soon as the disciples encountered the raging storm, they began to struggle hard against the wind and the waves. जैसे ही शिष्यों का सामना उस प्रबल तूफान से हुआ, वो तेज हवा और लहरों के साथ कड़ा संघर्ष करने लगे। And the more they rowed, the more distressed they became. और जितना अधिक उन्होंने शोर मचाया, उतना ही वो घबराते गए। Did Jesus know of their predicament? क्या यीशु उनके संकट को जानता था? I want to answer this question when we meet next time. इस प्रश्न का उत्तर मैं हमारे दोबारा मिलने पर देना चाहता हूँ। Be sure to tune in so that you can hear the reasons why Jesus sometimes is silent in the middle of the storms of life. निश्चित कीजिए कि आप अगली बार सुनेंगे ताकि आप उन कारणों को सुन सकें कि क्यों यीशु कई बार हमारे जीवन के तूफानों में खामोश रहता है। Until then, I wish you God's richest blessing. तब तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूँ।